بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. A very warm welcome to everyone. We are very thankful to Shoaib Saab to have given his time for the series of dialogues with LSOs. اور یہ ہم نے اب یہ 5واں ہمارا ڈائلاگ چلے گا. تو ابھی تک جو ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے ان کو ڈاکیومنٹ کر کے ان کو یوٹیوب پہ ڈال دیے. تو میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ اپنے اپنے جو مائکس ہیں وہ آف کر لیں. شعیب صاحب کے میرا بھائی مائک آن رہے گا. اینڈ اوور ٹو یو. سوری راشد، میں ذرا اپنا وہ جی اسپیکر لگا رہا تھا. آپ لگا لیں سر. اوکے، اٹس فائن ناؤ. سو نبیل آپ شروع کریں. آپ بسم اللہ کریں. تو نبیل بسم اللہ فیروز کو میں انٹروڈیوس کر دوں سر. انہوں نے ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا ہے. یہ پہلے NRSP میں ہوتے تھے، پھر یہ کسی پروجیکٹ میں چلے گئے تھے. سو ہی از ناؤ، وہ ڈاکٹر یوسف جو ہیں وہ ان کی ڈیپوٹیشن ختم ہو گئی تھی، تو اب ہی از ایٹ دا مومنٹ ہی از ہیڈنگ دا تربت ریجن. تو نبیل ذرا آپ پلیز ٹیک اٹ اوور فرام ہیئر اینڈ اسٹارٹ. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر آپ کا شکریہ، اور خاص طور پر شعیب صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں تربت ریجن کو ٹائم دیا. اور اس سیشن میں سر سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور بلکہ ہمارے LSO کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو شعیب صاحب کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور شعیب صاحب سے ہمیشہ شعیب صاحب جو ہیں پاکستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. رورل ڈیولپمنٹ کے بانی ہیں پاکستان میں، بلکہ ہم سب جو بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے شعیب صاحب کی ہی چیزوں سے سیکھ کے آگے بڑھے ہیں. اور تھوڑی بہت کوشش کی ہے کہ کچھ تھوڑا سا اگر ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں کمیونٹی میں، تو ہم نے کوشش کی ہے. اور سر میرے خیال میں ایک راؤنڈ اپ انٹروڈکشن سے آغاز کر لیتے ہیں. ہمارے پاس آج LSO میرانی لوکل سپورٹ آرگنائزیشن جو کہ تربت اور ڈسٹرکٹ کیچ میں ہے، نودز ان کا UC ہے. اور ان کی جو پوری ان کی جو صدر اور جنرل سیکرٹری اور ان کی پوری ٹیم آج ہمارے پاس ادھر ریجنل آفس تربت کے حال میں بیٹھی ہوئی ہے. کیونکہ یہ نزدیک ہے ہمارے ادھر، کوئی 30-35 منٹ کا راستہ ہے، تو ہم نے میٹنگ جو ہے اپنے NRSP تربت ریجن کے حال میں ارینج کیا ہے. تو میرے خیال میں راؤنڈ آف انٹروڈکشن سے آگے بڑھتے ہیں. تو میرے ساتھ بیٹھے گل افروز صاحبہ جو ڈسٹرکٹ کیچ کو ہیڈ کرتے ہیں NRSP کی طرف سے. یہاں سے ہم انٹروڈکشن کا آغاز کر لیتے ہیں. السلام علیکم. گل افروز میرا نام ہے. میں یہاں ایز اے ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر NRSP میں کام کر رہی ہوں. میری نام نجمہ ہے. میں ایک CRP ہوں. السلام علیکم سر. میرا نام توفیل احمد ہے. میں LSO میرانی کا فائنانس سیکرٹری. میرا نام محمد علی پہ اور میں CRP ہوں. میرانی کا میرا نام مفتاح. میں LSO ممبر ہوں. ممبر ہوں. میرا نام فوزیہ ہے. میں LSO ممبر ہوں. اور میرا حصہ نسیمہ حصہ. میرا نام عزیزہ ہے. میں CRP ہوں. میرا نام راحت ہے. میں LSO ممبر ہوں. میرا نام محمد ابراہیم ہے. CRP. السلام علیکم سر. میرا نام ساجد علی ہے اور میں میرانی LSO کا بک کیپر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعیب سلطان صاحب کا کال ہے کہ کمیونٹی کو اپنے میں سے رہنما شناخت کرنے. اگر ان میں رہنما نہیں ہوتا تو باہر ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا. میرا نام عبدالرشید ہے.
सीओ गुड़ी का सदर हूँ, वीओ गुड़ी का मेंबर हूँ और एलएसओ मीरानी का जनरल सेक्रेटरी मेंबर हूँ, जनरल बॉडी मेंबर हूँ। मेरा नाम रोजल है और मैं सीआरपी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीरा है, मैं मीरानी एलओसो जनरल सेक्रेटरी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी की बात है, शोएब साहब जैसे हस्ती हमको टाइम दिया है। मेरा नाम रशीद अहमद है, मैं मीरानी लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का सदर हूँ। तो सर मेरे ख्याल में हम अपने जो एलएसओ डायलॉग के सेशंस का बाकायदा आगाज करते हैं आपकी इजाजत से। तो बगैर किसी टाइम ज़ाय करते हुए तो हम रशीद साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी प्रेजेंटेशन शोएब साहब को प्रेजेंट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा नाम जैसा मैंने खुद बताया और नबील साहब भी बताया, रशीद अहमद है और 93 में एनआरएसपी ने सोशल मोबिलाइजेशन के काम जो हमारे इलाके में शुरू किया है, उसी वक्त से मैं अपने सीओडी तरक्याती तंजीम शेखन का सदर हूँ और दरमियान में सदर भी एलएसओ का रह चुका हूँ। दरमियान में मैंने छोड़ा है, दूसरों को मौका दिया है। हाल ही में 25 दिसंबर 2020 को दोबारा एलएसओ का जो इंतखाब हुआ, इस वक्त से मैं एलएसओ का सदर हूँ और इससे पहले मैं एलएसओ का फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। सर आपकी इजाज़त से मैं प्रेजेंटेशन को शुरू कर लूँगा। जी शुरू जरूर। सर जैसा कि आपको बताया कि मीरानी लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यूसी नूदेज में है और जिला एच और तहसील तुर्बत है। 31 जनवरी 2007 को तश्कील हुई है और जनरल बॉडी की मेंबर 20 खवातीन, 20 मर्द और कुल 40 है। एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान 4 खवातीन, 5 मर्द और कुल 9 है। सीआरपीस की तादाद 4 खवातीन, 2 मर्द और कुल 6 है। बुक कीपर 1 है। कुल घराने 894 है। कुल आबादी 3085 खवातीन, 3241 मर्द, टोटल 6326 है। कुल गांव है जो मुजाजात हैं वो 9 है। गुर्बत की दर्जाबंदी बजरिए पावर्टी स्कोर कार्ड से जो किया है, लाचार यदि टोटल है 182 और 178 हमारे तंजीमों में और 98% है। गरीब तरीन 12 से 18 वाला जो स्कोर है वो 239 है और 214 हमारे तंजीमों में है, मुनज़्ज़म है और 90% है इसका। गरीब 178 है और 158 89% हमारे तंजीमों में है। मुतवसत खुशहाल 295 में से 205 हमारे तंजीमों में मुनज़्ज़म घराने हैं और 69% है। टोटल 894 घराने 755 हमारे तंजीमों में मुनज़्ज़म हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं 84%। सोशल मोबिलाइजेशन के हवाले से तंजीमात 19 मर्द, 35 खवातीन, एक मिक्स है, टोटल 55 है। तंजीम मेंबरान 307 मर्द हैं, 573 खवातीन, 880 हैं टोटल। तंजीमात की बचत जो मर्द तंजीमात हैं उसकी 11,09,065 है और खवातीन की 11,84,835।
जो मखलूत तंजीम है एक है, ये बहुत पुराना तंजीम है, इसका है 1,18,557 बचत है और टोटल 24,12,457। विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे सीईओ हैं 10 है, मखलूत हैं, ये यानी मर्द या खवातीन अलग अलग नहीं है, दोनों मखलूत हैं। वीओ में शामिल तंजीमात 19 मर्द तंजीमात है, 35 खवातीन, एक मखलूत तंजीम है, टोटल 55 के 55 तंजीमात जो हमारे हैं वो वीओ के मेंबर हैं। कराने की सतह की मनसूबाबंदी या मनसूबा साजी MIP किया है 755 है। VDP की तशकील साजी 10 टोटल है VDP और UCDP की तशकील हमने बनाया है एक UCDP यूनिको सले के दायरे एक होता है। आगे चलिए। CIF की सूरत हाल सर इस तरफ है कि जनवरी 2021 की रिपोर्ट है, वसूल करदा रकम CIF की कुल रकम है 38 लाख, इसलिए कि इससे पहले ब्रेस से पहले 20 लाख हमें मिला है, वो हमने इंटरेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है, इंटर लोनिंग किया है हमने। बाद में ब्रेस की जो प्रोग्राम आया 18 लाख का और हमें दिया है, तो वो इंटरेस्ट वाला सिस्टम हमने ख़त्म कर लिया है। जो ब्रेस का प्रोग्राम है वही जो हासिल कर रहे हैं वही को हम दे रहे हैं, वही को वापस कर रहे हैं। कर्जा का कुल जारी करदा रकम है 2,39,30,500 है। कर्जादारों की जो कुल तादाद है 1,055, 611 खवातीन, 444 मर्द। एक्टिव लोन 161 है। पोर्टफोलियो जो लोगों के पास है जो हमारे रकम वो है 44,31,400। रिकवरी रेट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 100% हम कर रहे हैं। बैंक बैलेंस 10,25,110 है। ये खातून को हमने कर्जा दिया है और अपना छोटा सा दुकान घर के साथ चला रही है। दूसरा साइड जो बैठा हुआ है वो सिलाई मशीन है। इनको NRSP की तरफ से यानी NRSP के हवाले से इसने ट्रेनिंग भी किया है और अपना दुकान खोला है, हमने कर्जा भी दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अब अच्छा आमदनी वाला बन गया है। और नीचे जो हमारा छोटा सा दुकानदार है इनको भी हमने कर्जा दिया है। शुरू में इनके वालिद बैरून मुल्क में मुलाजमत के हवाले से वहाँ खेती बाड़ी के हवाले से काम करता था। दरमियान में आया इनकी हालत बुरी हो गई। हमने जो इसके बेटे ने हमसे रब्ता किया है, हमें तंजीमों का मेंबर बनाए और इनको कर्जा दिया है। इब्तिदा ये इनको अब बारी बारी जो कर्जा खत्म हुआ दूसरा कर्जा जाए आस्ता आस्ता अब ये अपने पाँव पर कर आए। ये तो बेहतर सीट बन गया है। वाइज की जो प्रोग्राम है वो इस तरफ है। आगाही सेशन बराए साहब पानी हवाले से 894 घराने 818 यानी काम किया है हमने 818 पे और 91% है। आगाही सेशन बराए हिफाजती टीकाजात 815, तो बिल्कुल टीकाजात की जो सिस्टम है वही के पर अमल दरामद कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। 91% है, जो बाकी रह गए हो उनको इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ये जो अदब पे हमें दिया है, ये अदब की मैं बात कर रहा हूँ 894 की, ये अदब गवर्नमेंट की तरफ से टीकाजात के हवाले से हमें दिया है कि ये नहीं गवर्नमेंट का अदब है कि UC में 894 यानी को लगाना है। आगाही सेशन बड़ा कूड़ा क्रिकेट की तलफी 894 जो घराने हैं 803 बिल्कुल हमारे काम कर रहे हैं और जो हमने सेशन दिया है वही सेशन के हवाले से कूड़ा क्रिकेट तलब कर रहे हैं। 90% हमने कवर किया है। आगाही सेशन बड़ा तालीम के हवाले से
894 टोटल हमारे घराने हैं, 725 बिल्कुल बच्चे जो थे वो हमने स्कूलों में भेजे हैं। जो बाकी सेशन किया है 725 के साथ, और 81% हमने कवर किया। जो बाकी रह गई उनको कवर कर लेंगे। बच्चों को टीका जात के हवाले से ये बहुत एक बड़ा मसला था। ये नहीं बल्कि वो दूसरा खवातीन को तशद्दुद का टीका लगाना। ये बच्चों वाला 415 है और 317 हमने कवर किया है, 76% है। खवातीन की तशद्दुद का जो टीका है लगाना, ये तो बहुत एक बड़ा मसला था दरमियान में, कि खासकर जो 14 साल से ज़्यादा लड़कियां थी वो लगाने से थोड़ा इनकार कर रहे थे। यही बहुत कोशिश के साथ हमने इस अंदाजे 60% पे आया। इंशाल्लाह इनको हम 100% कर लेंगे। स्कूल में बच्चों की दाखिले के हवाले से 256 और दाखिला की जो रिश्वत है वो कम इसलिए हो गया कि दरमियान में कोरोना का जो सिस्टम आया, स्कूल बंद थे, कम्युनिकेशन की कमी थी। इनको इंशाल्लाह हम जो एज के हवाले से आ रहे हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, ये 100 कर रहे हैं। कराने की जो कूड़ा क्रिकेट की तलफी करते हैं 894 कराने गिरी हमारे हवाले से 879 घरानों को हमने सेशन दिया। कराने जो साफ पानी के जराए से पानी पीते हैं 894 जो हमारा हदफ है हमारे घराने हैं। 846 हमने बिल्कुल 100% हम पे जो हमने दिया है सेशन वो 846 से 95% है। वाटर क्वालिटी टेस्ट 15 जो हमारे इलाके जो कुएं थे, ज़्यादातर कुएं के इस्तेमाल पानी की इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो 15 का हमने टेस्ट किया है। टेस्ट शुदा ज़राए का लेबलिंग भी हमने किया है, यानी जो पानी अगर उसमें तो थोड़ा कमी थी, वही जो बोतल के जरिए इसमें गर्म कर लेते थे और उनको लेवलिंग यानी वहाँ कुएं पर लिखा है कि ये पानी इस्तेमाल की काबिल है। अगर वो जो इसमें कमी थी यानी नोट करके वहाँ लिखा है, ताकि बायोलॉजिकली जो पानी में कमी थी वो हमने गर्म करने के हवाले से और बोतलों में रख कर गर्म करने के हवाले से लोगों को हिदायत किया कि इस्तेमाल कर लें। कोरोना वायरस के मुतालिक ये एक वबा है, यानी पूरी दुनिया में फैल रही है। इसके मुताबिक आगाही सेशन दिया 680 घरानों को। कोरोना वायरस के ब्रोशर तकसीम किया 802 बैनर और पोस्टर लगाए, 110 लाउड स्पीकर पर ऐलानात किया, 12 यानी जो गाँव में थे हमारे छोटे छोटे हैं। मस्जिद में ऐलानात जो किया 5, SMS के जरिए जो आगाही सेशन किया 965 यानी कोरोना के इत्यादि तदाबीर के हवाले से। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में घरानों की रजिस्ट्रेशन 820। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम से जो घरानों को कैश ग्रांट मिला है 180 घरानों को मिला है। तंजीम जिलाई इंतजामिया की मदद करना और मुस्तहक़ घरानों का लिस्ट बनाना और उनमें राशन तकसीम करना, यानी जो कद साली थे वगैरह थे। और इसके अलावा जो कोरोना की जो लोगों में राशन तकसीम करते थे, इस हवाले से इंतजामिया को मदद किया और इंतजामिया को बताया कि ये हकदार है, इनको राशन देना। ये जो एक्टिविटी क्या है वही की जो तस्वीरें है वहीं के पर जो लिख रहा है और वैक्सीन कर रहा है और सेशन ले रहा है, ये तो पूरे क्रिकेट की तस्वीरें हैं। ये आगाही मुहिम तालीम के हवाले से जो वाक़ हुआ है और ये तस्वीर लगे हुए हैं। टीका जात के हवाले से हिफाजती टीके जाते हैं और बच्चों को स्कूल भेजने के हवाले से। ब्रेस प्रोग्राम की जो सरगर्मियां जो सब ग्रांट यानी LSO से हुई है। CIF पे मुस्तफ़ा घराने की 248, IGG इनकम जनरेटर ग्रांट से जो सफीद घराने हैं 50,
50 में से 0 to 11 स्कोर जो उनकी थी 35 थे और 12 से 18 15 टोटल 50 गिराने हैं। CPI स्कीम 4 किए टोटल यूसी के अंदर में। कैट के जो सेशन थे कम्युनिटी के आगाही सेशन है 540। LSO ऑफिस के लिए फर्नीचर लैपटॉप प्रिंटर वगैरह ये वेरियस प्रोग्राम से हमें मिले हैं। और CRP की तैनाती CRP 6 CRP काम कर रहे हैं, बुक कीपर एक है और वो काम कर रहा है। प्रोजेक्ट जो LSO मीरानी ने जो मुकम्मल किया है और उन पर जो काम किया है, यानी प्रोजेक्ट डोनर जो थे यूएसएड से हमने एक बहुत बड़ा, यानी हम कहते हैं कि हमने हमारे बहुत बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी कि हमें जो 2007 26 जून 2007 को जो हमारे इलाके में सैलाब आया, उस सैलाब की वजह से स्कूलों की जो फर्नीचर थे, लोग स्कूलों में रहे, फर्नीचरों को जलाया, स्कूल को रंग हो गए, सारे खत्म हो गया। यही प्रोजेक्ट के हवाले से हमारे स्कूल दोबारा बहाल हो गए। यानी ये प्रोजेक्ट यूएसएड से हमने किया। 71 लाख का था। दौरानिया 1 मार्च और 31 अगस्त 2011 को मुकम्मल हो गया। स्कूलों की तादाद 7 गर्ल्स स्कूल थे, 9 बॉयज स्कूल। प्रोजेक्ट में क्या काम किया? स्कूलों की बिल्डिंग, जो स्कूल थे उसकी बिल्डिंग की मरम्मत करने थे, बिल्डिंग मरम्मत किया, लेटरिन तामीर किया, पीने पानी के लिए कुएं खोदा और उनको मोटर वगैरह लगाया। फर्नीचर से मुराद डेस्क, टेबल और अलमारी, लाइब्रेरी टेबल, लाइब्रेरी बॉक्स, लाइब्रेरी शेल्फ, सारे ये प्रोजेक्ट के हवाले से स्कूलों को दिया। इस प्रोजेक्ट का जो ऑडिट था प्राइवेट फर्म था, वही फर्म से भी हमने करवाया है। दूसरा प्रोजेक्ट है हैंड वॉश विद सोप, यानी डोनर था वाटर एड, बजट 1,32,124 थे। दौरानिया यानी नवंबर 2017 तो मार्च 2018 थी। प्रोजेक्ट जो सरगर्मी हुई है, स्कूल और कम्युनिटी में आगाही सेशन करना, आलमी दिन मनाना, माओं के साथ सेशन करना, स्कूल वाश क्लब बनाना। इस प्रोजेक्ट में हमने ये काम किया है। ये जो तस्वीर है वो लाइब्रेरी स्कूल है, लाइब्रेरी तस्वीर है। ये उस वक्त 2 मिडिल स्कूल थे, एक हाई स्कूल थे, वो मिडिल स्कूल का है, ये तो हाई स्कूल का है। और लोगों के साथ जो प्रोजेक्ट के वक्त में मीटिंग किया है, उनकी मसाइल के जो काम थे वही काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए लोगों को शराकत किया है। और ये काम है जो लेटरिन की कुएं है, गढ़ाई, इनको खोद कर रहा है। ये भी वही हैंड वॉश की जो प्रोजेक्ट है वही की जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें वही के। अपनी मदद आप कहते हैं, हमारे वसाइल तो कम थे, हम तो महदूद वसाइल से रहते हुए अपनी कोशिश आप जैसे और NRSP की जो विजन थी और आपने जो हिदायत NRSP को दिया, NRSP के एसोस ने हमें दे दिया, हमें आगाही जो प्रोग्राम दे दिया, ये वही वसाइल से हम रहते हुए। एक बात मुझे याद आ गया सर, मैं माजरत के साथ टाइम लेता हूँ आपसे। एक दफ़ा मैं CEO का सदर था और जनरल जो मैनेजर दूसरा बंदा था। मैं एक पिकनिक के जा रहा था, तो मैंने मैनेजर को बताया कि आज मीटिंग है, मीटिंग को अटेंड करना और मीटिंग को इन्हीं पाए तकमील तक पहुँचाना। जब मैं वापस आया, लोग बैठे हुए थे, मैनेजर मीटिंग में नहीं आया। वो लोगों ने यानी वक्त से ज़्यादा टाइम दिया था, वो भी बैठ रहे थे मैनेजर के इंतज़ार में। मैंने लोगों से मशवरा किया, भाई ये मैनेजर काम नहीं कर रहे हैं और मैं भी काम नहीं करूँ,
تو لوگوں نے مجھے بتایا اگر وہ کام نہیں کر رہا ہے، آپ کام نہیں کریں گے تو لکھا پڑا گاؤں کے اندر 4-5 ہوں گے تو اور کون آئے گا ہمارے ساتھ کام کرے گا. تو یہی بات میں نے اپنے ذہن میں رکھا، بالکل یہ صحیح کر رہے ہیں. تو میں نے اسی دن سے فیصلہ کیا مجھے جو بھی ٹائم ملے گا میں لوگوں کے لیے دوں گا. یعنی جو وسائل میرے ساتھ ہیں میں اپنے وسائل کو لوگوں کی بہتری اور حالات زندگی کی بہتری کے لیے خرچ کر لوں گا. تو یعنی جو ایلوسو نے اپنے وسائل رہتے ہوئے اس وقت جون 2007 تھے، اس وقت ہمارے ساتھ وسائل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے. 31 جنوری 2007 کو ہمارا ایلوسو بنا تھا تو ایک سیلاب آیا ہمارے علاقے میں. یہی سیلاب کے دوران جو ہم نے اپنی مدد آپ کے ذریعے جو ہمارے بس میں تھے ہم نے کر لیا. یعنی متاثرین کو پانی دیا اور 3 گاؤں تھے ہمارے وہ بالکل صفائی ہستی سے ہٹ گئے، ان کے لوگ دوسرے خدا کے شکر ہے یعنی جو اموات وغیرہ نہیں ہوا، ان کو پانی دیا اور محفوظ مقامات پر لے گیا اور امدادی کمیٹیاں تشکیل دی. جو یعنی متاثرین تھے ان کو رجسٹریشن کیا، متاثرین کو خوراک دے دیا. خوراک اور نہیں تھے، کھجور وغیرہ ایسے ہی تھے چھوٹے چھوٹے ہوئے دے دیا اور پانی پہنچایا. جو روڈوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے علاقے جو پہاڑی علاقے ہیں تھوڑے پہاڑوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے. خدا کا شکر ہے اس وقت سردی کا موسم نہیں تھا، اگر سردی کا موسم ہوتا تو پتہ نہیں کیسا حال ہوتا تھا. اور پوری سروے شروع کر لیا، متاثرین کا رجسٹریشن میں ہم نے لگایا، بچوں کی بحالی، بجلی کی بحالی اور متاثرہ گاؤں جو تھے وہ لوگوں کو ایسے شعور ہم نے دے دیا کہ جو پرانے ان کی کمبے تھے وہی کو وہاں سے نکال کر اپنے دوسری جگہ کو لگایا. اور جو ٹیکنیکل بندہ ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے معاہدے کی ضرورت ہے، وہ کمبوں کو لانے کے لیے ٹریکٹر وغیرہ کی ضرورت ہے. ایسے ہم نے چندہ کر کے 1,33,000 روپے اس گاؤں کے کمبوں کے لیے ہم نے خرچ کر لیا. تنظیمات کی اندرونی قرضہ جات پہلے ایلوسو سے پہلے جو ہمارے تنظیمات تھے اور وہی سے ہم نے اندرونی قرضہ جات شروع کیا ہے. تنظیمات جو تھے 2,91,000 مرد تنظیمات ٹوٹل. ہماری یو سی کے اندر میں 3 تنظیمات نے یعنی اندرونی قرضہ جات شروع کیا اور مرد کی 2,91,000 میں قرضہ دیا اور خواتین کو 6,79,000 ٹوٹل 9,70,000. یعنی یہ نہیں کہ اتنے پیسے ہمارے پاس تھے، نہیں، جو بھی تھے ان کو قرضے دیتے تھے، وہی پیسے آتے تھے، دوبارہ دیتے تھے. یہی کہ نہیں کاؤنٹ کر کے اتنے آ گیا. شناختی کارڈ بنوانے کے حوالے سے لوگوں میں شعور نہیں تھے اور یہ 207 یعنی گھرانے کے 207 مردوں کو ہم نے یہ شناختی کارڈ بنوا کے دے دیا. اور جو موبائل ٹیم تھا وہ بھی علاقے میں لایا. 1,063 خواتین کی یعنی 1,270. بی پار بنوانے کے حوالے سے 315 مرد جو تھے وہ بی پار بناتے تھے اور خواتین جو ان کی مرد موجود نہیں تھے، جو مرد مزدور تھے، زیادہ بزی تھے، خواتین جا کے یعنی بی پار بناتے 463 ہے. اور لوکل سرٹیفکیٹ بنانا یعنی 140 کی رہنمائی ہم نے کیا ہے، ان کو مدد پہنچایا ہے. اور 210 خواتین. ووٹر رجسٹریشن اندراج کے حوالے سے 207 اور 163. برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے حوالے سے 15 یعنی کہ مرد اور 22 خواتین کی. اسکول میں بچوں کی داخلہ کروانا 207 یعنی لڑکوں کو اور 313 لڑکیوں کو. ویسے ہی پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر لڑکیوں کو توجہ نہیں دیتے، مگر ہم نے کوشش کیا ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ توجہ دے دیں اور لڑکیوں کو ایسا نہیں کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھا دیں اور لڑکے کو پڑھنے کے لیے بھیجنے. ہم نے کہا نہیں، لڑکیوں کا بھی حق ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو پہلے فارم پر کیے ہیں وہ بہت اس میں کمیاں تھی.
उसमें जो खातून थी, लड़कियां थी, शादीशुदा, गैर शादीशुदा थी, हमने वही फार्म को दुरुस्त करके 99 फार्म दिन रात हमारे टीम ने, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने मेहनत करके सीईओ में गए, 99 फार्म मुकम्मल करके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खुद आकर हमारे एलएसओ में बैठा, हमने बुलवाया एलएसओ में और ये दुरुस्त करके इनको दे दिया, इनकी पैसे जारी हो गए। वह लड़कियों के हवाले से जो मेडल पास करते थे, प्राइमरी पास करते थे, और बहुत से गाँव में प्राइमरी, बहुत से गाँव में मिडिल पास करते थे, उनके लिए क्लास नहीं थे, तो हमने बॉयज स्कूल में इसका रजिस्ट्रेशन किया और वही लड़कियों को रजाकाराना तौर पर हमने शाम के वक्त पढ़ाना शुरू किया है। अभी तक हो रहे हैं 362 लड़कियों को हमने मैट्रिक पास करवाया। शजरकारी की मावा में से 2700 टोटल, यानी हम काउंट करते हैं 2730 दरख्त हमने लगाए। लोगों को आगे सेशन दिया है कि भाई दरख्त लगाना इंतहाई ज़रूरी है, माहौल के हवाले से, इंसानी सेहत के हवाले से। ये हमारे जो छोटे मोटे कारकर्दगी हैं वही की तस्वीर है और दरख्तों की। गवर्नमेंट से राब्ताकारी, हम ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, मगर हम ये कर सकते हैं कि गांव में जो गवर्नमेंट आता है, जो सियासी पार्टी की गवर्नमेंट आता है, वहाँ वही की नुमाइंदे को कांटेक्ट करके उनको बताएंगे कि भी इस तरह आपको करना है। और यही तरीक़ेकार से रहते हुए हमने वजीर उस वक्त की तो वजीर तालीम 93 की वजीर 96 की वजीर तालीम थी डॉक्टर अब्दुल मालिक, वही से हमने मुलाकात किया और स्कूलों गर्ल्स स्कूल की इंतहाई कमी थी उस वक्त, हमने उनको बताया भी स्कूल की ज़रूरी है, तो स्कूल हमने 3 स्कूल खोला इलाके में, बिल्डिंग की मंजूरी दिया, बॉयज प्राइमरी स्कूल को अपग्रेडेशन किया है। और मीरान डीम की वजह से ज़री ज़मीन और अर्जियात के नुकसानात के मुआवजे मीरान डीम मुतासिन को प्राइमरी के लिए राब्ताकारी करना, यानी लोगों को एक जगह बुलाकर मीटिंगों में, सीईओ के मीटिंगों में बताया भाई आपके जो नुकसानात हुए हैं हमें गवर्नमेंट से राब्ताकारी करना है, ये आप क्या क्या कौन कौन सी बातें हैं जो हम उनको बता दें, यानी उनकी जो ज़राई जो अराज़ियात थे ये ख़राब हो गए थे, मीरान डीम से मुतासर हो गए थे। हमने एमएनए को बुलाया, एमपीए से बात किया, उस वक्त डीसी से भी मिले हैं, मुख्तलिफ मीटिंगों में गए, सरगर्मी हम लेके आए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से गरीबों के लिए 150 कार्ड हासिल करने की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो था पहले शुरू में वो मिनिस्टरों, एमपीए, एमएनए के हाथ में थे। हमने एमपीए से मुलाकात करके 150 कार्ड इब्तिदा में अपने एलओसी से दिलाया गरीबों को, 50 घरानों को 0 से 7 पावर्टी स्कोर वालों में राशन, कीमा, तकिया, रजाई की तकसीम किया। ये क्या कस वक्त वो खुश्क साली के हवाले से, जो खुश्क साली थे वही खुश्क साली के दौरान ये किया। ईपीआई सेंटर के जो हमारे इलाके में ईपीआई के सेंटर नहीं थे, हमने महकमा सेहत से 2-3 बार मिले हैं और पीपीएचआई के हवाले से ईपीआई का सेंटर खोला है। यूसी यानी नूदद एक गांव का नाम है, यूनियन कौंसिल का नाम है, वही यूनियन कौंसिल के एक गांव है नूदद है, नूदद से हमने खोलाया है ईपीआई के सेंटर। 2 वाटर सप्लाई स्कीम एमपीए से करवाया है और सिविल डिस्ट्रिक्ट की अपग्रेडेशन एमपीए से, यदि गांव जो है यूसी के अंदर शेखन है वही की अपग्रेडेशन करवाया है। पहले सिविल डिस्पेंसरी था और अपग्रेडेशन करके बीएचयू करवाया। लिंक रोड लोकल गवर्नमेंट की तामीर मदद से उनको राब्ता करके जो हमारा उस वक्त जो लोकल कौंसिल का मेंबर था वही के हवाले से हमने लिंक रोड भी करवाया।
स्कूल के लिए इम्तिहानी हाल जो हमारा एक हाई स्कूल है नूदस के, इसके लिए MPA से इम्तिहानी हाल करवाया। CCB के जरिए कंप्यूटर सेंटर का क्याम और CCB का हिस्सा 12,000 थी और वो 48 साल लोकल गवर्नमेंट। NGO से राब्ताकारी, इन सैलाब मुतासरीन को खुराक पहुँचाने के हवाले से PMT एक तंजीम था, वही से हमने राब्ताकारी करके उनके लिए ग्राउंड में काम करने के लिए मुश्किल था, हम उनसे मिले हैं, भाई ग्राउंड में हम काम करेंगे। हमने लोगों को चुना, इन लोग मुतासर हुए गए, इन लोगों को देना 298 घरानों को दिया। कारिज गेबन को बहाली के लिए आपाशी के जरिए ज़्यादातर कारिज हैं, उस वक्त हमने SPO से रब्ता करके कारिज गेबन को बहाल किया। वोटर एजुकेशन की वर्कशॉप करवाया और मुतासरीन के लिए हैंड पंप की तंसीम, उस वक्त जो मुतासरीन जो सैलाब से मुतासर हुए और इब्तिदा में हमने जो हैंड पंप के हवाले से जो काम किया है NCHD थी और 29 हैंड पंप हमने लगवाए हैं इलाके में। इंसानों की शऊर व आगाही के हवाले से SPO से 330 शुरा ने यानी शिरकत करके और ये प्रोग्राम SPO से करवाया। जेंडर ट्रेनिंग के हवाले से SPO से एक यूनिट किया है। ट्रेनिंग ग्रीन केयर एक हम भी किया है। हमारा आइंदा का लाएअमल इस तरह है कि हमारा काम है कि गैर मुनज़्ज़म घरानों को मुनज़्ज़म करना, यानी हम यानी बरेस से पहले हम बहुत मुश्किलात में थे सर, माजरत के साथ हो सकता है आपका टाइम ज़्यादा और चले, यानी अपनी मदद आपके तहत हम एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर जाके CO फॉर्म भी करते थे। अब बरेस की वजह से ये हमें थोड़ा आसानी मिला है कि CRP के ज़रिए से हमारा ये आइंदा लाएअमल है। CRP के ज़रिए से हम जो गैर मुनज़्ज़म घराने हैं रह गए हैं उनको हम अपनी तंजीमों में शामिल करें। हुकूमती इदारे और मुख्तलिफ NGO से गाँव UC की तरक्याती प्लान पर अमल दरामद के लिए राब्तेकारी करना, यानी असल हकीकत ये है कि जो गांव यानी जो ग्राउंड में जो लोगों की ज़रूरत है वो ज़रूरत अगर इस्लामाबाद में मिनिस्टर बैठ के कर लें तो नहीं होगा, यानी लोगों की ज़रूरत है और है उनकी प्लान और है, तो वही प्लान को लोगों की ज़रूरत की प्लान को UCDP की हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट से रब्ता करके या दूसरे NGO से करवाएं। CIF के ज़रिए गरीब घरानों को कर्जा फराहम करना, यानी कर्जे की जो बात करते हैं, जैसा सर आपको सब खुद पता है कि लोग कितने परेशान होंगे जो अपनी माशी हालात बेहतरी के लिए जो प्लान करेंगे उनको प्लान को अमल दरामद के लिए कितने मसाइल उनके आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी MIP कर लें और वही CIF जो हमारा 0 से गरीबों के लिए 0 से 24 यानी स्कोर वाले को दे दें। कम्युनिटी की सतह पर मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमात करना, खवातीन के लिए ट्रेनिंग का सेंटर क्याम करना, तालीम को फ़रोग देना, ख़ास कर बच्चियों के तालीम, जो बच्चियां हैं उनकी तालीम को फ़रोग देना, यानी उनको ज़्यादा तालीम की तरफ लाना। सर ये हमारे मीरानी लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंटेशन थे और मैं आपसे आज मुझे आप जैसे हस्ती से सीखने का मौका मिला है। थैंक यू सर।